Hello friends, this is Rajiv and welcome to Zero to Infinity. Today, in this video, we will discuss about some question which based on volume, surface and area. In the last video, we have already discussed about the basic term which is used in this chapter, and also we have discussed some question which based on such topic. In this way, we are further going to discuss about some more question which based on the same topic. So I hope you would like the video. So watch the video till the end and let's start our today's first question. The question is, an iron block an iron block each of volume is of volume 105 centimeter cube if its length and breadth are if its length and breadth are 7 centimeter and 5 centimeter respectively, then find the height of the block. Find the height of the block. This is the given question. The question says that an iron block, एक iron block है, this is an iron block this is the iron block. The volume of the given the volume of the block is 105 cubic centimeter. Its length is given as 7 centimeter and its breadth is given as 5 centimeter, and we have to find its height. This is the given question. So I hope the question is clear. Now let's see its solution. तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक आयरन ब्लॉक है जिसका वॉल्यूम दे रखा है. इसका वॉल्यूम दिया हुआ है 105 सेंटीमीटर क्यूब. इसकी लेंथ दी हुई है 7 सेंटीमीटर और इसकी ब्रेड्थ चौड़ाई दे रखा है 5 सेंटीमीटर. हमसे कहा है कि बताओ इसका हाइट क्या है. एज वी नो दैट since we know that हम जानते हैं कि वॉल्यूम इज इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच. ये होता है जो वॉल्यूम होता है क्यूबॉइड का. एक्चुअली ये जो शेप आपको दिख रहा है ये किसका शेप है? क्यूबॉइड का शेप. तो क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम होता है वो होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट. क्लियर है? यहाँ पर ध्यान दीजिए. द वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक इज गिवन एज 105 cubic centimeter. So we can write 105 in the place of volume, and this will be equal to the length and breadth are given as 7 and 5. So we write 7 multiplied by 5 and h will be given as it is. Now divide it. 5 1 is 5, 5 to the 10 and 5 1 is 5. 7 1 is 7 and 7 3 is 21.
So here we get h is equal to 3 centimeter. Therefore the height of the block is 3 centimeter. The height of the block is 3 centimeter और इस ब्लॉक का हाइट कितना है 3 सेंटीमीटर के बराबर है. क्लियर है ये चीज? Let's see the next question. Let us see the next question. The next question is given that a 1 cubic meter of ice weight is 900 kilogram. Then what is the weight of a cubical block of ice of side 0.5 meter? So the question is 1 meter cube of ice block weight is 900 kilogram. What is the weight of a cubical block? What is the weight of cubical block of ice of side 0.5 meter. So this is the given question and I hope the question is clear to everyone. Let's see the question once again. क्वेश्चन में बोला है कि 1 मीटर क्यूबिक वॉल्यूम है, एक ब्लॉक है, एक आइस का क्या है ब्लॉक है, ठीक है, और उसका जो वॉल्यूम है वो 1 क्यूबिक मीटर है. उसका जो वेट दे रखा है वो 900 किलोग्राम का. कह रहा है कि एक अदर ब्लॉक है जिसके साइड का जो लेंथ है वो 0.5 है. तो बताइए उसका वेट कितना होगा. क्वेश्चन में सिंपल सी बात है. द सॉल्यूशन इसका देखिए बहुत आसान है. द वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट आइस ब्लॉक इज 1 मीटर क्यूब. एक पहला जो आइस का ब्लॉक है उसका जो वॉल्यूम दिया 1 मीटर क्यूब दिया है. 1 मीटर क्यूब का मतलब समझिए ये एक क्यूबिकल आइस ब्लॉक है, ठीक है. कैसा आइस ब्लॉक है? एक क्यूबिकल आइस ब्लॉक है. मैं यहाँ पर बताता हूँ ये एक क्यूबिकल आइस ब्लॉक है. And we know that the all side of the cube is always equal. जो क्यूब होता है क्यूब के सारे साइड क्या होते हैं बराबर होते हैं. अगर इस क्यूब का वॉल्यूम 1 क्यूबिक मीटर है दैट मीन्स इसकी जो लेंथ होगी वो भी 1 मीटर होगा, जो इसकी ब्रेड्थ होगी वो भी 1 मीटर होगा और जो इसकी हाइट होगी वो भी क्या होगी 1 मीटर होगी. यानी कि ऑल थिंग इज 1 मीटर. दैट इज व्हाई वी कैन राइट हियर 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर. यही तो कह सकते हैं. 1 क्यूबिक मीटर का मतलब क्या हुआ 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर. और इसका जो वेट दे रखा है, इसका जो वेट है वो है 900 किलोग्राम. इसका जो वेट है वो कितना है 900 किलोग्राम. क्वेश्चन में बोला है कि अगर कोई दूसरा क्यूबिकल आइस ब्लॉक है जिसका प्रत्येक साइड 0.5 मीटर है, ठीक है, तो हम यहाँ पर निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ सेकेंड ब्लॉक. तो ये हो जाएगा 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.5, ठीक है. जब इसको सॉल्व करेंगे तो होगा 0.125 मीटर क्यूब. 0.125 मीटर क्यूब. अब ध्यान दें डेसिमल को हटाते हैं सबसे पहले. चलिए ठीक है.
अब यहाँ पर देखें कि ये कितना है, ये 1 मीटर क्यूब है और ये क्या है उसका 8 प्राइम है ना, ये क्या है उसका भाई 1/8 का मतलब क्या होता है, 1/8 का ही मतलब होता है 0.125। अगर हम 1/8 को डेसिमल में चेंज करेंगे तो क्या मिलेगा 0.125 मिलेगा। तो ये क्या है, ये जो आपको वॉल्यूम दिख रहा है ये पहले वाले वॉल्यूम का 1/8 पार्ट है। द सेकेंड ब्लॉक हैज द वॉल्यूम 1/8 ऑफ द फर्स्ट वॉल्यूम। तो जो अगर फर्स्ट वाले ब्लॉक का अगर वेट 900 किलोग्राम है तो इसका भी 1/8 पार्ट तो क्या होगा, तो यहाँ पर हम निकालेंगे देयरफॉर, या इसको हम लिख सकते हैं दिस कैन बी रिटन एज 1/8 मीटर क्यूब। इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, डेसिमल हट जाएगा, 0.125 का मतलब होता है 1/8 मीटर। क्लियर है? अब हम क्या करते हैं, देयरफॉर वेट ऑफ सेकंड ब्लॉक, ये हो जाएगा जो पहले वाले का वेट है, जो पहले वाले का वेट है उसी वेट को हम क्या करें 1/8 उसका करें, तो ये क्या हो जाएगा 1/8 मल्टीप्लाइड बाई 900। इसको सॉल्व करें तो जब सॉल्व करेंगे तो 8 1 जा 8, इसको डिवाइड करेंगे तो 8 1 जा 8 हो गया, 8 2 जा 16। यहाँ पर डिवाइड कर देते हैं, आपको भी क्लियर हो जाएगा। इसको हम यहाँ पर डिवाइड कर देंगे, थोड़ा डिवीजन मिस कर दे रहा है, यहाँ कर रहे हैं। जब 900 को 8 से हम डिवाइड करेंगे, 8 1 जा हो गया 8, 1 बचा 0, 8 1 जा 8, 2 बच गया 0, फिर 8 2 जा 16 करेंगे और यहाँ पर पॉइंट, तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 112.5 किलोग्राम। The weight of second block will be equal to 112.5 किलोग्राम। क्लियर ये चीज, इस चीज को आप समझिएगा कि पहला वाला जो यहाँ पर आइस ब्लॉक है उसका जो वॉल्यूम निकाला है वो 1 मीटर क्यूब है, 1 मीटर क्यूब है पहली चीज, यानी कि उसकी जो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होगी वो भी 1 मीटर होगा। द वेट ऑफ द first volume, the first block is 900 kilogram. The side of second cubical block is 0.5 meter. तो जब उसका वॉल्यूम निकालेंगे तो 0.5 इंटू 0.5 करेंगे तो कितना आएगा 0.125। और ये जो 0.125 है जब इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा 1/8 आ जाएगा। ये 1/8 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 1/8 रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसका जो वेट होगा, यानी कि सेकंड वाले ब्लॉक का जो वेट होगा वो पहले वाले ब्लॉक के वेट का 1/8 टाइम होगा। तो हम क्या करते हैं, पहले वाले ब्लॉक के वेट का 1/8 टाइम निकालेंगे तो आ जाएगा 112.5 किलोग्राम, विच इज द वेट ऑफ सेकंड ब्लॉक। क्लियर है ये चीज, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे बढ़कर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है a metal block of length 4 centimeter, a metal block of length 4 centimeter, width 3 centimeter and height 2.5 centimeter, weight 500 ग्राम, weight
500 ग्राम। What is the mass of block? What is the mass of block? What is the mass of block of length 5 centimeter, of length 5 centimeter, width 4 centimeter and height 3 centimeter of the same metal, of the same metal, of the same metal. This is the question. क्वेश्चन क्या बोलता है समझने को, क्वेश्चन देखने में बड़ा है, कुछ है नहीं। तो क्वेश्चन इज अ मेटल ब्लॉक ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर, ब्रेथ 3 सेंटीमीटर, हाइट 2.5 सेंटीमीटर। एक मेटल का ब्लॉक है, टुकड़ा है, जिसकी लंबाई दिया है 4 सेंटीमीटर, ब्रेथ दिया है 3 सेंटीमीटर और हाइट दिया है 2.5 सेंटीमीटर। इसकी जो वेट है, मतलब कि इस साइज से बने हुए ब्लॉक का जो वेट है वो 500 ग्राम है। तो कहा है कि अगर साइज को बदल दे, सेम मेटल का ही ब्लॉक हो लेकिन बस साइज बदला हो, साइज को बदल के क्या कर दे, लेंथ को कर दे 5 सेंटीमीटर, ब्रेथ कर दे 4 सेंटीमीटर, हाइट कर दे 3 सेंटीमीटर, इसके वेट पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मतलब कि अब इसमें कितना और मटेरियल इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत इजी है। अब क्या होगा, जाहिर सी बात है, जब इसके मेजरमेंट बदल रहे हैं तो इसका वेट क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, पहले तो वॉल्यूम निकालेंगे, पहले क्या निकालेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट ब्लॉक, तो क्या लिखेंगे, L इंटू बी इंटू एच, यानी कि 4 इंटू 3 इंटू 2.5। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो 30 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। ये क्या निकल गया, वॉल्यूम निकल गया पहले ब्लॉक का। अब सेकंड ब्लॉक का वॉल्यूम निकालेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ सेकंड ब्लॉक, सेकंड ब्लॉक क्या है, 5 इंटू 4 इंटू 3 करेंगे, 5 इंटू 4 इंटू 3 करेंगे तो 60 सेंटीमीटर क्यूब। ये सेकंड वाले ब्लॉक का वॉल्यूम है, फर्स्ट वाले ब्लॉक का वॉल्यूम। अब कहा है यहाँ पर जो फर्स्ट वाला ब्लॉक है, फर्स्ट वाला ब्लॉक है, इसका वॉल्यूम कितना है, 30, और इसका वेट कितना है, इसका वेट कितना है, तो ध्यान दीजिए, फर्स्ट लिखा है, यहाँ सेकंड लिखा है। ठीक, फर्स्ट वाले का जो वॉल्यूम है वो कितना है, 30, इसका जो वॉल्यूम है कितना है, 60। रेशियो ले लीजिए, इन दोनों का क्या ले, रेशियो। तो जब आप रेशियो लेंगे तो रेशियो कितना होगा, 30 1 जा 30 और 30 2 जा 60, यानी कि रेशियो बन गया 1:2 का। रेशियो कितने का बन रहा है, 1:2 का रेशियो बन रहा है। दूसरी चीज, अब क्या है कि जो फर्स्ट वाला ब्लॉक है उसका वेट है 500 ग्राम, यानी कि 1 बराबर है 500 ग्राम के, तो 2 किसके बराबर होगा, तो 500 इंटू 2 अपॉन कर देंगे 1। ठीक है, ये चीज यहाँ तक कोई डाउट नहीं, यूनिटरी मेथड लगा दिया। अब इसको जरा से सॉल्व कर ले तो ये क्या हो जाएगा, देखिए, जब हम 500 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1000 ग्राम, यानी कि दिस विल इक्वल टू 1000 ग्राम। और 1000 ग्राम थोड़ा ऊपर लिख दी, दिख नहीं रहा होगा, यहाँ लिखता हूँ दिस इज इक्वल टू 1000 ग्राम। और 1000 ग्राम का मतलब क्या होता है, 1 किलोग्राम। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1 किलोग्राम, यानी कि सेकंड वाला जो ब्लॉक होगा उस ब्लॉक का वेट कितना होगा, 1 किलोग्राम होगा। तो यहाँ से बात क्लियर हुआ। सबसे पहले हमारा काम होगा कि दोनों ब्लॉक का वॉल्यूम निकालें, फिर दोनों ब्लॉक के वॉल्यूम का रेशियो ले लें। रेशियो देखेंगे तो 1:2 का रेशियो आया है। पहले का वेट 500 ग्राम है, यानी कि 1 बराबर है 500 ग्राम के। तो दूसरे का पूछ रहा है तो हम यूनिटरी मेथड लगा देंगे कि अगर एक पेन की कीमत 500 रुपया है तो 2 पेन की कीमत कितनी रुपया होगी।
तो 2 पेन की कीमत हो जाएगी 1000, इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे तो 1 किलो। क्लियर? आई होप द solution of the question is clear to everyone. If you have any doubt, then please mention the comment in the comment section. I will clear your doubt in my next video. And also I would like to suggest you that please do more and more questions from your exercise. Before starting the exercise, first of all watch the complete video. If you did not see the last video, then please go to the playlist and find out the previous video. Okay? And your examination is about to come, that is why I also want to suggest you that please revise the chapter from 1 to till that I have taught you. Okay student, so we shall meet in the next video with some new question. Till then, goodbye.